Today I am continuing with the previous chapter that we had done, that is the outcome of democracy. In that we can discuss, हमने क्या क्या discuss किया था, the comparison between the democratic countries and the non-democratic countries. Comparison में क्या क्या features थी, first जो हमारे पास definition थी, that is democracy is the better form of government than the other forms. उसके features क्या क्या थे, हमने किन basis पर भी go for the comparison में. Comparison में आपके पास क्या था, that is promotes the equality. अगर आपके पास equality वाला formula था, equality को जिसको हम देखते हैं वो आपको मिलेगी सिर्फ democratic countries में. Second, enhances the dignity of the citizen. जितनी भी जो enhance, जितनी भी dignity, जो भी individual citizens की जो dignity है उसको किसमें maintain किया जाता है, that is in the democratic form of government. अगर हम compare करते हैं with the no democratic form of government, आपको ऐसी कोई भी चीज, आपको equality का जो right, जो हमने feature पढ़ा था, that is the main feature of the democracy. Yes, every person is equal. Every person have equal opportunities. Maybe it's social opportunities, maybe it's political opportunities. Every opportunity, every person in a democratic country should be treated equally. There should be no bias system. There should be no discrimination. Every person is treated equally in the democratic country. So our next topic is why we can say that democracy is accountable, responsive and legitimate. Simple word, accountable democracy. This is the most important topic of this chapter. Why we can say that हमेशा इस chapter में से board में there is definitely a question would be there. किसी भी base पर आ जाता है. Why we can say that democracy is accountable? Why we can say that democracy is responsive? Why we can say that it is the legitimate democracy? So this is the very important part of this chapter. If you leave that topic, definitely आपको नहीं पता चलेगा कि ये words जो हम accountable use कर रहे हैं, responsive use कर रहे हैं, उनका meaning क्या होगा. Accountable democracy. Accountable means approachable. मतलब जितने भी actions होते हैं democracy में, जो भी decisions लिए जाते हैं, जो भी policies होती हैं, जो भी programs होते हैं, that is totally based upon the people wishes, people welfare. हम कभी भी कोई भी डेमोक्रेसी में ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जो एक इंडिविजुअली होगा. हमने इंडिविजुअली सोच लिया. अकाउंटेबल मींस दैट इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसलिए अप्रोचेबल. आप अगर आपकी गवर्नमेंट में कोई भी डिसीजन गलत हो रहा है तो डेफिनेटली आपको उसके लिए आंसरेबल होना होगा टू द पार्लियामेंट वन. अगर पार्लियामेंट को लगता है डेफिनेटली दिस गवर्नमेंट विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, विल नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो क्या करेगी, आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर देगी. And what is no confidence motion? क्या कहेगी, इस गवर्नमेंट को यहाँ से रिमूव आउट कर दिया जाए. So accountable, it means that ये आपके पास जो रूम है, that is accountable one, कि it is totally approachable one. गवर्नमेंट को जो भी अपनी पॉलिसी, जो भी प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो क्या होता है, वो ऑल द वर्किंग इज इन द डेमोक्रेसी. आपके पास इस तरीके की कोई भी अकाउंटेबल डेमोक्रेसी आपके पास अदर फॉर्म्स में अवेलेबल नहीं होती. Responsive, it means responsibility. If you make the policies, definitely आपको ये चीज देखनी है कि आपकी वो जितनी भी पॉलिसीज हैं, जो भी आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्रेम कर रहे हैं, जो भी आप उनको प्रोग्राम्स दे रहे हैं, उसके लिए only the government would be responsible. And if you are not working, तो क्या होगा, आपको नेक्स्ट इलेक्शन में क्या कर दिया जाएगा, वॉश आउट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा. अगर आप अपने पर्सनल के लिए, अगर पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, डेफिनेटली इलेक्शंस में व्हाट दे डू, दे जस्ट डू द प्रॉमिसेस, दे जस्ट यूज द डर्टी ट्रिक्स. वो अलग-अलग प्रॉमिसेस करती हैं. बट अगर आप उन प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं करोगे, इट मींस यू आर नॉट रिस्पांसिबल टू द पीपल, यू आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल एट दैट टाइम. और अगर आप एक आंसरेबल, अगर आप एक रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रहे हो, तो आपके क्या होगा, आपको क्या होगा, गवर्नमेंट या आपको रिप्रेजेंटेटिव जिनको चूज किया गया है थ्रू द पीपल वन, तो आपको नेक्स्ट प्लान में क्या कर देंगे, दे जस्ट रिमूव यू. फिर आपके पास आती है लेजिटिमेट. लेजिटिमेट क्या होती है, लेजिटिमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी. इन दोनों पार्ट्स में अगर हम फिर भी देखें, नो डाउट हमारे पास ये दोनों पार्ट्स में क्या होता है कि यहाँ पर हम कहीं ना कहीं पर क्या कर जाते हैं, वी आर टोटली लैग बिहाइंड. हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, हम कहते हैं कि यस हम अकाउंटेबल है, इसलिए हम उन्हीं चीजों को फुलफिल कर रहे हैं, हमारी पीपल्स का अप्रोच है, हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं. बट नो डाउट कुछ कंट्रीज में जो क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, हम सिंपल सी चीज बोलते हैं
फ्री एंड फेयर इलेक्शन? क्या होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन? इट मींस कि ओपनली आपके पास, सबके पास राइट है कि आपका इलेक्शन है, आप कंटेस्ट कर सकते हो, कैन कास्ट योर वोट, बट क्या वो करप्शन फ्री होता है? क्या उसमें डर्टी ट्रिक्स यूज नहीं होती हैं? क्या उसमें मनी और मसल पावर का यूज नहीं होता है? इफ दे कंसीडर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे हो गए? हमने बोला कि ये इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव ओपन डिबेट्स ऑन एवरी पॉलिसी एंड एवरी प्रोग्राम, वी हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बट क्या वो चीज है? इज इट इम्प्लीमेंटेड? हम मसल पावर तब भी यूज हो रही है, मनी तब भी यूज हो रही है, दैट्स वी कैन से दैट कि नो डाउट हम डेमोक्रेसी के हमारे एक्सपेक्टेशन, वी एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम द डेमोक्रेसी, हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा, बट डेमोक्रेसी डजंट मीन दैट कि एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेमोक्रेसी होगा. डेमोक्रेसी डजंट मीन दैट. यस, इट इज अ वे कि आपके पास आपके कॉन्फ्लिक्ट्स का, आपकी डिस्प्यूट्स का, आपकी प्रॉब्लम्स का यू गॉट द सॉल्यूशन, बट इट डजंट मीन दैट कि ऑल द थिंग्स आर डिपेंडेंट अपॉन द डेमोक्रेसी और द गवर्नमेंट वाला. सो जो आपका लेजिटिमेट है, यहाँ पर जो डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा क्या हो जाती है, आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है. रीजन क्या है कि ऑल द प्रोसेसेस, जितनी भी हमारे पास प्रोसेसेस होती है, जितने भी हम लॉज बनाते हैं, हम अमेंडमेंट्स करते हैं, हम न्यू चेंजेस करते हैं, हम न्यू लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो एक लेजिटिमेट, इट मींस लीगली प्रोसेस होता है हमारे पास, लीगल एक प्रोसीजर होता है हमारे पास. वी हैव अ ट्रांसपेरेंट वन, ट्रांसपेरेंसी है हमारे पास, बिल्कुल हम ट्रांसपेरेंटली क्या कर रहे हैं, इस चीज को परफॉर्म करते हैं. हमारे पास ये नहीं कि ठीक है, अगर कोई हिंदू है, ठीक है, वो मेजॉरिटी में, डेफिनेटली वी मेक द डिफरेंट लॉज फॉर द हिंदूज वन. यस, दीज आर द माइनॉरिटीज वन. आपके पास क्रिश्चियंस हो गए, आपके पास मुस्लिम्स हो गए, तो आप उनके लिए अलग लॉज बना दोगे? नो, देयर इज अ फुल ट्रांसपेरेंसी इन द डेमोक्रेसी वन. That's why we can call it legitimate democracy based upon the laws, full of transparency. मतलब पूरा एक तरीके से एक ट्रांसपेरेंट है, आपको क्लियरली शो हो रही है वो चीज कि yes, these are the things, these are the laws, और हमें इन लॉज को, इन पॉलिसीज को ऐसे फ्रेम आउट करना है. इसी से रिलेटेड आपके पास जो मैंने आपको प्रीवियस अपने लेक्चर में भी बताया था, आरटीआई क्यों बनाना पड़ा? आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन है, क्यों जरूरी था? व्हाई देयर इज अ नीड? बहुत सारे सिटीजंस हैं, बहुत सारे पीपल हैं, डेफिनेटली दे हैव अ इश्यूज विद द गवर्नमेंट वर्किंग्स. वो कहते हैं कि ठीक है, हमने अपना काम कराना था और ये चीज हमारे पास पॉसिबल नहीं हुआ है, वी डोंट इवन नो कि गवर्नमेंट उस पे वर्कआउट कर भी रही है नहीं कर रही. तो इस कंडीशन में क्या किया गवर्नमेंट ने, एक हमारे पार्लियामेंट ने एक एक्ट ही बना दिया कि ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन है. नाउ इन थ्रू दिस एक्ट वी हैव टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द गवर्नमेंट, व्हाट द गवर्नमेंट डू, क्या कर रही है, किस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है. नो डाउट ये एक्ट ही हमने बना दिया 2005 में, जहाँ से हम सब प्रोसेसिंग को देख सकते हैं, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. बट अगर हम इस क्राइटेरिया को एक, जिसे हम कहते हैं, एक ओवरव्यू करता चले, ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जिस तरीके से हमने इसको सोचा. सो आरटीआई नो डाउट एक हमारे पास एक्ट है जिससे हम गवर्नमेंट की वर्किंग्स को देख सकते हैं, एक लेजिटिमेट हमारी डेमोक्रेसी हो सकती है जिससे हमें प्रोसीजर्स का पता चल सकता है. सो दिस फीचर इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी वन. फर्स्ट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड द लेजिटिमेट. इसके बाद आपके पास एक और चीज आती है, yes, so our next topic is in this chapter is economic growth and development. अब डेमोक्रेसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट और पार्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इफ वी कैन से दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो स्टेट में हमारे माइंड में क्या चीज आती है? इट मींस हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होने चाहिए, हम पॉलिटिकली भी स्ट्रांग होने चाहिए, हम सोशली भी स्ट्रांग होने चाहिए. और इस सब चीजों के लिए हम किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? ओनली द डेमोक्रेसी वन. कि यस, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमारे पास ये जो भी चीजें हैं, आप सोशली, पॉलिटिकली वी आर स्ट्रांग वन. बट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ द डेमोक्रेसी. अगर हमने अपने पुराने इयर्स में सर्वे देखा हो, लास्ट 50 इयर्स में, इफ वी आर कंपेयरिंग दिस थिंग विद द डिक्टेटरशिप कंट्रीज वन, तो वहां पर आज कंपैरेटिवली टू द डेमोक्रेटिक वन, वहां पे जो ग्रोथ क्या है वो ज्यादा हुई है. और जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुई है? लेस हुई है. व्हाट द रीजन बिहाइंड? हम कहते हैं कि इस वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और सबके सब रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट बड़ा स्मूथली वर्क आउट करे, देन व्हाई इज इट सो दैट द
decreasing if we are comparing this thing with the non-democratic countries. क्यों है ऐसा कि जो non-democratic countries है उनकी economic growth and development वो क्या increase हो रही है और जो democratic countries उनकी क्या हो रही है, decrease हो रही है और non-democratic countries की increase हो रही है. What is the reason behind that? Why is it so? जबकि अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज की ग्रोथ क्या होनी चाहिए एज कंपैरेटिवली टू द नॉन डेमोक्रेटिक वन, वो इंक्रीज होनी चाहिए. रीजन इज वहां पे क्या है, वहां पे कोई प्रोसेसिंग में डिले नहीं है. वहां पे जो उन्होंने एक बार एक चीज को इंप्लीमेंट कर दिया, व्हेन दे इम्प्लीमेंटेड वंस, वो उनका जिसे कहते हैं प्रॉपर्ली रूल आउट हो गया. लेकिन अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देखें, अगर कोई भी प्लान बनाते हैं, इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी ऑफ द प्लान, तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो चीज़ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, लेंदी हो जाती है, बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. टाइम कंज्यूमिंग होगा, प्लान आपका क्या होता चला जाएगा, उस प्लान को बहुत ज़्यादा टाइम आ जाएगा, टाइम कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो डेफिनेटली जो प्लान एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री 1 ईयर में पूरा कर रहे हैं, उसी प्लान को डेमोक्रेटिक कंट्री क्या कर रही है 3 इयर्स या मैक्सिमम 5 इयर्स में. तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रोथ क्राइटेरिया वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया. बट हम इसको एक, दिस इज नॉट द वन क्राइटेरिया कि हम ये कहते हैं कि यस इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि फिर तो हर कंट्री को क्या डिमांड करनी चाहिए कि हमें नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री बना दो. बट नो, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया. इस क्राइटेरिया के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है डेमोक्रेसी का. इसके डिफरेंट फीचर्स हैं कि वाई कि जो बाकी कंट्रीज है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होती है. वो फैक्टर्स आपके क्या हो सकते हैं, फर्स्टली द साइज ऑफ पॉपुलेशन. साइज ऑफ पॉपुलेशन से क्या होगा, अगर आप एक कंट्री में रहते हो, सिंपली आप टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द न्यूजीलैंड, वहां पे कितना सा है, ठीक है, उसका एरिया बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन क्या है, 65,000. डेफिनेटली वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ एज कंपैरेटिवली टू आवर कंट्री वो ज्यादा होगी. ग्लोबल नेटवर्क्स क्या होते हैं, हमारी जो कनेक्शंस होते हैं, अगर हमारा लिंक है, ग्लोबल नेटवर्क है हमारा, हमारे किस कंट्री के साथ कितने कनेक्शंस है, दैट इज ओनली डिपेंड अपॉन दिस वन. अगर हमारा ग्लोबली इंपैक्ट ही नहीं है, अगर हमारा ग्लोबली कनेक्शंस ही नहीं है, अगर हमारे रिसोर्सेज ही नहीं है, इफ वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, देन हाउ वी कैन से दैट कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट इंक्रीज होगी. तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कि डेमोक्रेटिक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट एक इंक्रीज क्यों नहीं होती. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. इज नॉट दैट कि यस अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी ही होगी. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या करती है, इफेक्ट में आती है. इसके बाद आता है आपका रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. वी कैन से दैट ऑलवेज इन अ डेमोक्रेसी की ये हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि फिर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री देयर इज इनइक्वालिटी और द पॉवर्टी में रिडक्शन मींस कम हो जाए, लेवल क्या है, कम हो जाए. बट अगर हमने देखा हो एज फ्रॉम आवर प्रीवियस टाइम, जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है, उससे पहले क्या था, जो जब से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे एरियाज थे, मार्जिनलाइज्ड एरियाज थे, कुछ हमारी कम्युनिटीज थी, वहाँ पर क्या था, हमारा पॉवर्टी लेवल पास्ट में भी एंड इन द प्रेजेंट वन वो क्या हो रहा है, वहीं की वहीं पे वो स्टिल है. मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. मतलब उनका लेवल पॉवर्टी में बहुत ज्यादा क्या है, हमारा जो लेवल है, बहुत सारे पीपल हमारे यहाँ कंट्री में ऐसे हैं जो अब भी एक पॉवर्टी लेवल में ही रह रहे हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन. मतलब एक पॉवर्टी का लेवल अगर यहाँ पर है तो वो बिलो, इससे भी जो उनका लेवल क्या है, डाउन में जा रहा है. तो दिस इज नॉट द क्राइटेरिया कि इफ वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री तो जो आपकी इनइक्वालिटी है या पॉवर्टी है उसमें रिडक्शन होगी. नो, इसमें सिंपल सा एग्जांपल आप अपने कंट्री का ले सकते हो. इंडिया है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इनइक्वालिटी अब भी इनइक्वालिटी है, अभी भी इक्वालिटी की कोई बहुत सारी हमारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पर इक्वालिटी को देखा ही नहीं जाता. क्या होता है, कितने हमारे मार्जिनलाइज्ड हैं, कितने हमारी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं, वो क्या उनको बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर भी इनइक्वालिटी है. विमेंस का जो आप देख लीजिए, विमेंस की डिस्क्रिमिनेशन को देख लीजिए, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी वे में देख लीजिए. इट मींस जो रिडक्शन है वो इनइक्वालिटी की डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो सोचा था उस तरीके से नहीं हो रहे. सेम विद द पॉवर्टी. पॉवर्टी में भी अगर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में
तब भी अनटचेबल्स थे, उस चीज को हम फॉलो अप कर रहे थे। पॉवर्टी का लेवल तब भी वही था। जैसे जैसे आफ्टर द इंडिपेंडेंस हम ये कहें कि बहुत ही ज्यादा एक वास्ट डिफरेंस आया है। नो, देयर इज नो वास्ट डिफरेंस, नो डाउट देयर इज अ डिफरेंस, बट एक जैसे कि ड्रास्टिक चेंज, इस तरीके के ड्रास्टिक चेंज किसी भी तरीके से हमें डेमोक्रेसी में नहीं मिली। सो in this chapter what we have to do, firstly why we can say that democracy is the better form of government than the other form of government, then the features, why democracy is accountable, why democracy is responsive, why democracy is legitimate one, and economic growth and the development. If you are comparing the economic growth and the development between the democratic countries and the non-democratic countries, no doubt there is, इसमें क्या चीज आई है आपके पास कि जो ग्रोथ है आपकी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में वो क्या है, फार बेटर एज कंपेयर टू द डेमोक्रेटिक कंट्रीज का। रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, इस तरीके की कोई भी चीज हमें अगर हम कंपैरिजन करते हैं वो नहीं शो हुई है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज है तो यहाँ पर देयर वुड बी अ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। दिस इज द होल चैप्टर of class 10 outcomes of the democracy. Thank you. Have a nice day.